हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो ये चलिए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे ऑफ द जनवरी मंथ। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना। So friends, we have an app by the name Carriers Cloud, which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded and logged in through your Gmail ID, you will be transferred to this page. And you can see here various all courses and various other sections provided to us. The courses that are provided by our team are very helpful and they will be very useful in your preparation. In the courses that we provide, we give you daily current affairs, weekly current affairs and monthly current affairs. In daily current affairs, we will be providing you with multiple quiz of 20 questions daily. Then we'll be giving you the daily current affairs content also. Similarly for weekly, we will providing you 50 questions of quiz on weekly basis, as well as all the important current affairs of that week will be given to you in an ebook. Similarly for monthly basis. Apart from this, we'll be providing you with banking awareness and all the banking relating exams. So don't worry, your preparation is in our hands. We'll be providing you with the best content. Apart from this, then you should know we covered topic wise. Important daily topic wise or the monthly topic wise are covered in our course. We'll give you 20 types of such PDFs that will cover apps and web portals, important days, books and authors, national affairs, international affairs, sports, awards, applications and web portals, and defense sector. All the topics that you see of general studies are basically covered here. As you saw, we provide current affairs in English, Hindi, banking awareness, exam PDF, special current affairs, topic wise current affairs are provided to you, state current affairs, then topic wise quizzes are provided to you. There is another section in special current affairs that is learn from picture, and we have named this infographics. Infographics are your interactive PDFs that you can interact with. They are highly informative. I highly suggest you to go and check these out because they will be helping you to learn things in an interactive way. So do check them out, they will be very valuable to you. These are very important, so you should be able to revise them from using our course. All you have to do is to purchase our course. You can use code Vikas10, that will be giving you an additional 10% discount on the purchase you make. So it is a bumper offer. All you have to do is go and download our app and check our courses. So friends, we'll start with the session. तो ये चलिए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे ऑफ द जनवरी मंथ। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना। एंड एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको एक थॉरोली प्रिपरेशन के लिए यही डेज भी पता होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 जनवरी को हम DRDO फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। चलो 1 जनवरी से पहले मैं आपको दिसंबर का एक बता देता हूँ। 26 दिसंबर को अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया कि 26 दिसंबर 2022 से हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस ऑब्जर्व करेंगे। जो 2 संत थे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, उन्होंने अपना जो सेक्रीफाइस दिया था, एंड दे वर द सन ऑफ द 10th सिख गुरु। ये 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के बच्चे थे। उनकी मेमोरी में हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस ऑब्जर्व करते हैं। तो 1 जनवरी को DRDO फाउंडेशन डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे। इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ब्रेल डे हम किसकी मेमोरी में? लुइस ब्रेल की मेमोरी में ऑब्जर्व करते हैं। इन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट डेवलप की थी। ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है? जैसे 6 डॉट्स होती हैं इसमें, तो इनको अरेंज किया जाता है इन सच अ मैनर की जो ब्लाइंड पर्सन है, जब वो उसके ऊपर हाथ फेरेगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। 6 जनवरी को हम वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन, जिनके माता पिता की डेथ हो जाती है ड्यू टू वॉर, भी वो मिलिट्री फोर्सेस में हो या फिर वो सिविलियन, कैसे भी उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको ऑनर करने के लिए ये वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन सेलिब्रेट किया जाता है। DPIIT एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक ऑब्जर्व किया गया 10 से 16 दिसंबर। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करना। 10 से 16 जनवरी, सॉरी दिसंबर कह गया मैं, 10 से 16 जनवरी हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। और याद रखना, अगर मैं पूछूं कि स्टार्टअप डे, वर्ल्ड स्टार्टअप डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 16 जनवरी को वर्ल्ड स्टार्टअप डे ऑब्जर्व किया जाता है और 10 से 16 जनवरी के बीच में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। BIS फाउंडेशन डे पूछा जाए तो 6 जनवरी। आ गया जी ये 26 जनवरी हमने डिस्कस किया कि वीर बाल दिवस हर साल 2022 से सेलिब्रेट किया जाएगा। फिर 9 जनवरी को आज आपका आ जाता है NRI डे। NRI को क्या कहते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। NRI की एक कंडीशन होती है कि कोई पर्सन अगर 6 महीने से ज़्यादा बाहर रह रहा है लगातार, तो उसको 6 या 8 महीने होते हैं तो उनको NRI डिक्लेयर कर दिया जाता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वर्ल्ड हिंदी डे। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे जिसकी थीम रहेगी इट्स ऑल इन द माइंड, इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। फिर 14 जनवरी को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, ये भी इंपॉर्टेंट। और फिर 15 जनवरी को आर्मी डे हो जाता है, ये तो सबको पता ही है। जैसे हमने देखा था कि नेशनल स्टार्टअप डे कब आ गया, 16 जनवरी को, और 10 से 16 जनवरी के बीच में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, नेशनल स्टार्टअप इनोवेशन वीक। मूविंग ऑन, DPIIT हमने देखा कि फर्स्ट एवर स्टार्टअप इनोवेशन वीक 10 से 16 जनवरी के बीच में। फिर NDRF रेजिंग डे 19 जनवरी को, इंपॉर्टेंट मार्क करना। 17 से 21 जनवरी के बीच में ओपन डाटा वीक ऑब्जर्व करते हैं। 19 जनवरी को हम त्रिपुरा ने सेलिब्रेट किया कॉकबोरोक डे, ये इनकी त्रिपुरी लैंग्वेज भी होती है, ठीक है। इसको बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा के द्वारा 44th एडिशन ऑफ कॉकबोरोक डे ऑब्जर्व किया गया, कब, 19 जनवरी को, मार्क करिएगा। फिर 10 से 17 जनवरी के बीच में डे NRLM सेलिब्रेटेड एग्री न्यूट्री गार्डन वीक, ये अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। एग्री न्यूट्री गार्डन वीक कब ऑब्जर्व किया गया, 10 से 17 के बीच, और किसके द्वारा, डे NRLM ने सेलिब्रेट किया। फिर 21 जनवरी को हम मणिपुर मेघालय त्रिपुरा स्टेटहुड डे ऑब्जर्व करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस किसको ऑनर करने के लिए, किनकी मेमोरी में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मेमोरी में ये ऑब्जर्व किया जाता है, और 23 जनवरी को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। फिर 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जिसकी थीम थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। फिर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आपका 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। मूविंग ऑन, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया, मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, ठीक है। फिर 25 जनवरी को ही हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल टूरिज्म डे, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करते हैं। 25 जनवरी को ही हम नेशनल टूरिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं जिसकी थीम रहेगी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे, याद रखिएगा। अभी हमने पीछे देखा था, दो चीज़ याद करिएगा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा स्टेटहुड डे 21 जनवरी को, और फिर हम बात कर रहे हैं 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे की। 26 जनवरी को इंडिया को हमें पता ही है रिपब्लिक डे होता है, लेकिन कौन से नंबर का रिपब्लिक डे था, 73rd एडिशन ऑफ रिपब्लिक डे था। 26 जनवरी को ही इंटरनेशनल कस्टम्स डे। 27 जनवरी को इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे जिसकी थीम थी मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। फिर 28 जनवरी पे आते हैं तो डाटा प्राइवेसी डे। 30 जनवरी को मार्टर्स डे और शहीद दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। मार्टर्स डे और शहीद दिवस कब, 30 जनवरी को। 30 को ही वर्ल्ड लेप्रोसी डे विद द थीम यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, और 30 को ही वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे जिसकी थीम रहेगी अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द निग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिजीज, ठीक है। चलो, ये तो थे देखो वन लाइनर्स हमारे जो इंपॉर्टेंट थे इस मंथ के, ये आप सबको पता होना चाहिए, क्विक रिवीजन हो गई। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना, ये प्रीवियस ईयर पूछे भी गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं। जैसे वर्ल्ड ब्रेल डे, अभी हमने देखा 4 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। लुइस ब्रेल के बर्थडे के दिन उनको ऑनर करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट डिस्कवर की थी जिसमें 6 डॉट्स होती है, हमने बात की, ठीक है। चलो, फिर हम बात करेंगे पोसोको डे। पोसोको डे 3 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है और इसका भी 5th एडिशन था, पोसोको डे। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। क्या बताया था मैंने कि जिन बच्चों के माता पिता या किसी एक माता पिता की डेथ हो गई थी ड्यू टू वॉर, बेशक वो वॉर में सोल्जर हो या फिर वो एक सिविलियन हो, या वॉर का उन पर इफेक्ट पड़ा हो जिससे उनकी डेथ हो गई, और उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो ऑर्फन हो गए, उन बच्चों के लिए हम वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स ऑब्जर्व करते हैं 6 जनवरी को। नेक्स्ट आ जाता था आपका 75th एडिशन ऑफ फाउंडेशन डे ऑफ BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये याद रखना, फाउंडेशन डे होता है 6 जनवरी को BIS का, और इस बार 75वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा एडिशन, 75वां एडिशन। फिर हम बात करेंगे वीर बाल दिवस की। मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस ऑब्जर्व करेंगे हम, ठीक है। एंड ये किन की मेमोरी में, 2 बच्चे बताए थे मैंने जो 3rd और 4th सन थे 10th सिख गुरु गोबिंद सिंह के, उनका नाम क्या बच्चों का, साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह। इनके सेक्रीफाइस को ऑनर करने के लिए वीर बाल दिवस ऑब्जर्व किया जाता है 26 दिसंबर को, मतलब करा जाएगा अब से 2022 से। तो पहला एडिशन कब ऑब्जर्व किया गया, 2022 में, अभी हम आगे करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। फिर अलग मैंने बताया था आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व करा जाता है।
नेक्स्ट 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस या फिर एनआरआई डे। एनआरआई डे, जो लोग बाहर जाते हैं, जो बाहर रहते हैं फिर इंडिया में आते हैं, मतलब उनका 6 महीने से ज़्यादा अगर वो बाहर रह लेते हैं तो उनको एनआरआई डिक्लेयर करा जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9 जनवरी को। नेक्स्ट आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे 14 जनवरी को हमने देखा। फिर 15 जनवरी को क्या होता है? आर्मी डे। याद रखना आर्मी डे 15 को होता है, तो उससे पहले वाला भी आपका आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड होगा, आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे। नेक्स्ट कॉकबोरॉक डे 19 जनवरी को हम कॉकबोरॉक डे ऑब्जर्व करते हैं, त्रिपुरा के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसी को त्रिपुरी लैंग्वेज डे भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट, कॉकबोरॉक डे या फिर त्रिपुरी लैंग्वेज डे त्रिपुरा स्टेट में ऑब्जर्व किया जाता है, 19 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। एंड ये 44th एडिशन था कॉकबोरॉक डे या फिर त्रिपुरी लैंग्वेज डे का, अभी रिसेंटली हमने जो ऑब्जर्व करा। नेक्स्ट एग्री न्यूट्री गार्डन वीक 10 से 17 जनवरी के बीच में हम एग्री न्यूट्री गार्डन वीक ऑब्जर्व करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा ये एग्री न्यूट्री गार्डन वीक ऑब्जर्व किया जाता है 10 से 17 जनवरी के बीच में, ठीक है। एग्री न्यूट्रिएंट गार्डन्स को बढ़ावा देने के लिए, इनको रूरल हाउस होल्ड्स में डेवलप करने के लिए ये वीक ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल टूरिज्म डे। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम पता है टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि आपका बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करता है, ठीक है। मल्टी बिलियन डॉलर सेक्टर है आपका एक टूरिज्म इंडस्ट्री अलग से। तो नेशनल टूरिज्म डे, अभी हमने देखा कोरोना की वजह से पूरा मार्केट डिसरप्ट हो गया था टूरिज्म का, तो ये पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। तो 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर 25 जनवरी को हम 12th एडिशन ऑफ नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। याद रखना हमें पता है जो वोटिंग की एज क्या है, 18 साल होती है। तो नेशनल वोटर्स डे 12वां एडिशन ऑफ नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है और 25 को ही हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? आपका नेशनल टूरिज्म डे। दोनों डे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।